ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਿੰਜਨ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਿੰਜਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਅਦਬ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਫਨ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਪਾਰੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 051 92 91 521 ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 051 92 91 520। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਜਨਾਬ ਆਜਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਬਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡੀਕ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਦੂਜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬਸ ਜਾਂ ਵੇਵਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਐ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਲੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਪਰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਮਾਰੀ ਮਈਆ ਤੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਟਮ ਟਮ ਟਮ। ਉਹ ਪਿੰਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਿੰਜਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਮਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੜੂਚੂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਉਹ ਪਿੰਜਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਪਿੰਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨੋਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਧੀਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਤੇ ਐ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਪਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗੰਦਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਲੰਗੰਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਬਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 12 ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੰਦੇ ਲਵਾਣੇ, ਉਹ ਲੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਛੀਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆਣਾ ਕਵਰ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਰੁੜੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਰੁੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੀ। ਤੋ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਸਾਫਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮੀਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੱਬ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫਸ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਨਫਸ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਨਮਾਜ਼, ਹਜ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਬੜਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਰਿੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਾਲਣ ਤਰਕਾਰੀ ਜੇ ਪਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਸਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅੱਛੀ ਆਂਡੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਤੇ ਐਡਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲੈਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਸਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਹਰ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਲਿਆਇਆ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਕੋਈ 200-150 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੇਲਾ 350-400 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। और मेरे नबी ने किया है, साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि जिसले भी खरीदो फरोख्त करो अपने गाहक नाल ओनू अगर तुहाडे माल विच कोई खामी है तो खामी भी जरूर दस दिओ, और अगर तुहाडा माल बेहतरीन है तो वह बेहतरीन जिहड़ा ओनू दिओ, और मुनाफा मुनासिब लवो। लेकिन फिर मैनू दुख ते रिंज नाल ये कहना पैंदा है कि नहीं, साडे वीर, साडे अपने, साडे भाई, असी इको मुल्क, इको घर, इको शहर, इको महल्ले दे रहने वाले यार बेली जिसले असी दुकान ते जाने आ, भावें कपड़ियां दी होवे, भावें सब्जी दी होवे, भावें कोई भी होवे, खास तौर ते रमज़ान विच, ते ओह कहंदा जी कि उन्होंने कहिए ना यार कोई रियायत कर दे, कहंदा जी यही तो महीना है कमाई दा। दसो यार ये महीना कमाई दा है जे, पर नेकियां कमाण दा महीना जे, समझ आई जे ना। और ये विच अपने बंदियां नूं मैं अगे भी कहा सी कि जिहड़ी दर्जन 12 दी है ना 13 दी कर दिया करो, क्यों कि रब बरकत पांदा है। तुहानूं एक छोटा जिहा वाकिया सुनाना कि लाहौर नारकली, पुरानी नारकली च ना एक बंदा हुंदा सी, फ्रूट वेचदा हुंदा सी, और उत्थे बाकी भी दुकानदार सन, ते ओह आवे करे साइकिल ते अपना सौदा लैके सवेरे, ते बहुत जल्दी तकरीबन वो अपना सौदा, फ्रूट आना सीजन होंदा सी, जिहड़ा सीजन होंदा सी वो चीज़ बेचदा सी। सर्दियां होंदियां सन ते उन्हें फ्रूट किन्नू लाए होंदे सन, ते ओ जनाब अपने बेच के किन्नू ते खाली करके अपना टोकरा ते टुर जाए, ते ओहदे जेहड़े इर्द गिर्द दे साथी सन दूजे दुकानदार, उन्होंने एक दिन उन्होंने पूछा, ओ यार तू करता की है? उन्हें कहा भाजी मैं जेहड़ा वा ना दर्जन, मेरी दर्जन 13 दी है, तुहाडी 12 दी है, ते ये मेरे च फर्क है। और यकीन मनो अज भी ओहदे पोतरे पुरानी नारकली चों जूस की दुकान करते हैं, और अज भी वो जूस का एक वड्डे गिलास नाल छोटी गिलासी देंदे ने। उन्होंने अपनी रवायत कायम रखी हुई है, और उन्होंने रब ने इन्नी बरकत दी है, यकीन मनो ये 3-4 नस्ल हो गई ने, और वो उत्थे रब ने उन्होंने ते बड़ा खास करम किया जे। ये बंदे नाल खैर, बंदे नाल एक दूजे नाल करांगे तो वो खैर बहुत ही होएगी, ये घाटा नहीं होंदा, जरब होंदा जे, तकसीम नहीं जी होंदी। ते गल थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन गल इस गल्ले लंबी करनी पै गई है कि वीरो ये तुसी ध्यान रखना। आइए कोई 15-16 दिन है ने रोज़े दे महीने दे, ते ਜਿਹੜਾ भी आवे तुहाडी दुकान दे बूहे ते चढ़े, ओहदे नाल प्यार नाल गल करनी है, गुस्सा नहीं होना, और नाप तोल विच गड़बड़ भी नहीं करनी, और अच्छा और बेहतरीन माल जिहड़ा वो देना है। आओ हुण एक गीत सुनने। तो तुहाडा अपना मीम कुंजाई 53 इंच फिर परत आया है, और परतना की है जनाब के तुहाडे लोकां दे पैगाम आ गए ने, और पैगाम भी इस गल्ले आए ने कि जनाब तुहानू टैलीफोन नंबर असां याद कराए ने, क्योंकि हर बुधवार आना हुंदा ते 5-6-7 दिन हफ्ता लंघ जांदा ते भुल जांदे ने बंदा। ते व्हाट्सएप नंबर है साडा FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी दा 051 92 91 521 है, ते लैंडलाइन नंबर जिहड़ा तुहानू पता है 051 92 91 520 है, और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं, 521 520 है। और मैं कभी कभी शुक्र करना वा अपनी टीम में कि यार 420 ते 421 नहीं है, तो हो तुसा साडा चंगा होते ते टीम बनना सी। ते पैगामात भी आ रहे हैं सानू जनाब। पहला पैगाम आया जनाब नादिया कोसर होरां दा काक चौधरी इस्लामाबाद तो, प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया जी। फयाज चौधरी साहब ते आफ्ताब चौधरी साहब पिंडी तो कह रहे ने प्रोग्राम बड़ा चंगा है, और वीरो प्रोग्राम चंगा नहीं तुसी चंगे हो। हाँ जी, चूँकि शीशे वाली गल है ना, बंदा शीशे जल्द खलोंदा है तो अपना चेहरा वेखदा है तो उन्होंने फिर सोहना ही लगता है ना। तो
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲਈਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਡਮਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਖੜਪੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਐਡਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਡਮਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲਈਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਾਲ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਮਲਕ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਡੀਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਈ 1944 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਟੀਗੇਟ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੌਸੀਕੀ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿੰਗਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਡਿੰਗੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡਿੰਗੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੋਕ ਫਨਕਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ PNCH ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ। ਔਰ 1960 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਤੀਸਮਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰੀਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਗਾਏ, ਔਰ ਕਿਆ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
प्यारे गाने ने ना पंजाबी एक छल्ला है जिहड़ा बहुत पसंद किया जाता है, और भी बड़ा है एक जग्गा है, और बेशुमार ना उर्दू फिल्म पंजाबी फिल्मां गाने गाए, सूफी कलाम गाया, और ख़ास तौर पर इन्हों जिहड़ा मलका हासिल है ना जी सैफुल मलूक पढ़ने ते, मैं समझना वा साडे पूरे मुल्क की दुनिया विच मियाँ मुहम्मद बख्श साहब दे इस कलाम नू जिन्ना अच्छे तरीके नाल जनाब शौकत अली मरहूम ने गाया है, कोई बंदा नहीं गा सकेगा आइंदा भी। और इन्ना रुझ के ते रीझ नाल गाया है और दिल नाल गाया है। और इन्हों हुकूमत ने अपना सदारती अवार्ड बनाया, उसने कारकर्दगी नाल भी नवाजा, और भी बड़े इन्हों अवार्ड भी मिले। और फिर बिल आखिर ये 2 अप्रैल 2021 नूं साडे तो रुखसत हो गए। तो अल्लाह पाक इन्हां दा जहान अच्छा करे। तो आओ इन्हां दी आवाज़ विच तुहानूं एक गीत सुनाने। तुसीं त्रिंजन प्रोग्राम में शौकत अली होरां नूं सुन रहे सो, और जग्गिया टुर परदेस गयो बुआ वजिया। असल ये जग्गा, ये दुल्ला पट्टी, ये जिन्ने भी सन साडे खरल हो गए, ये जिन्ने साडे कौमी हीरो सन, लेकिन चूँकि गुलामी का दौर सी और इन्होंने कुछ अपने ताईं कोशिशां कीतियां अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ कुछ काम करने दी, पर उन्होंने इन्हों उत्ते डाकुआं दा ते इश्तिहारियां दा इल्ज़ाम ला के इन्हां दे ना किरदारां नूं मसख ते खराब करने की कोशिश की। इवें ही भगत सिंह होरी सन, बड़ा वड्डा नां सी, और उन्होंने लाहौर अनारकली दे चौक दे विच फांसी दिती गई महज इस गल्ले कि वो आज़ादी मंगते सन अंग्रेज़ कोलों और काले कानूनां कोलों। लेकिन असल च साडे इलाके दे साडे पंजाब दे शेर पुत्र सन, और इन्हां दे उत्ते सानू माण है। और इस यही गल है कि असी कदी कदी अपने इन्हां वीरां दे बारे च लिखी हुई जिहड़ी शायरी ते गीत ने वो तुहाडे नाल सांझ पाने आ, ताकि तुसी भी सुनो असी भी सुनीए ते कुछ यादां ताज़ा हो जांदियां ने। ते तुसी इसलिए सुन रहे हो FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी तो प्रोग्राम त्रिंजन। तुहाडा अपना मीन कुंजाई ते WhatsApp नंबर है साडा 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर है 051 92 91 520। ते हुण ही सानू मैसेज आया है, बल्कि टैलीफोन आया है जनाब शेख कैसर ते शेख मोहम्मद हसन साहब दा रावल टाउन तो, बड़ा पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम नू। बहुत शुक्रिया जी ताड़ी इस पसंद का, चूँकि पसंद नाल ही सब कुछ चंगा लगता है, तुहानू पता है। और इहदे फिर साडा भी हिम्मत भी वधदी है, साडा कह लो खून भी वधदा है, और असी अपनी मेहनत एक किस्म का साडी वसूल हो जाती है इस हवाले नाल कि तुसी वीरां मित्रां सानू पसंद करदे हो, और साढ़े हाथे इस तो वड्डा और इज्जत की हो सकती है। तो अज तुहाडे नाल जनाब जिहड़ा एक होर कर रहे हैं सांझ, वो हैगी है जनाब साडी बहुत ही बड़े सगीर दी मशहूर गायिका ने और नाजिया हसन। और जी नाजिया हसन के बारे च तुहाडे नाल थोड़ी बहुत सांझ पावांगे, क्योंकि नाजिया हसन वो गुलकारा ने कि जिन्हां दे बारे च बड़ी छोटी उम्र सी उन्हां दी, और इन्हां दा जिहड़ा पैदाइश हुई हुई सी जी अपना 3 अप्रैल 1965 नूं कराची च पैदा होए। इन्हां दी वालदा दा नाम मुनज़्ज़ा बसीर सी, इन्हां दे वालिद साहब का नाम बसीर अहमद सी, और ये नाजिया हसन के नाम तो मशहूर हुई। इन्हां दे भाई ज़ुहेब हसन इन्हां तो छोटे सन। और एक मज़े की गल तुहाडे नाल अपनी ज़ाती शेयर करा कि मेरे ताया जी उदों कराची होंदे सन, ते ओ नाजिया
हसन दे वालिद दे दोस्त सन बसीर साहब दे, और वो सानू सुनाते होंगे सन बाद जिसले नाजिया हसन मशहूर हो गए ना, चूँकि नाजिया हसन पहले पाकिस्तान टेलीविजन के बच्चों के प्रोग्राम आए सन, सुहेल राना साहब के प्रोग्राम से संग संग चलते रहना ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਚੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹਸਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਧੁੰਮਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੌਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਰਸਗੀਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹਸਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਰਥੱਲੀ ਪਾਈ ਮੌਸੀਕੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ मिली कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए बात बन जाए, और ऐसी बात बनी इन्हों दी कि फिर इन्होंने भैन भाई ने मिल के बेशुमार पॉप म्यूजिक दे उत्ते ना काम किया, मौसीकी बनाई, गाने लिखे भी, और कुछ गाने शायरा ने लिख के दिते जिहदे चो फारूक कैसर साहब, अनवर मकसूद साहब उन्होंने इन्हों दे उहदे च काफ़ी मदद की थी, और कुछ इन्होंने खुद अपने गाने लिखे, और इन्हों दियां एल्बम्स मशहूर हुई बड़ियाँ, और एक बहुत कह लो इन्होंने अपनी छोटी उम्र कामयाबी दियां बुलंदियां नूं छू लिया। और पैदाइश जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया कि 3 अप्रैल 1965 कराची च हुई, और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इन्हां दी ना वफात बहुत जल्दी होगी, और इन्हां ने जिहड़ी शादी की थी वो इश्तियाक बेग साहब सन, एक बिजनेसमैन, उन्हां दे नाल इन्हां दी शादी हुई, और उन्हां दे विचों इन्हां दा एक बेटा पैदा होया। उस तो बाद ये शादी जिहड़ी हुई 1995 च हुई इन्हां दी ना, लेकिन फिर इन्हां नूं सरतान यानी कि कैंसर दी एक जिहड़ी मोलक बीमारी हुंदी है वो इन्हां नूं लग गई, ते ये सन 2000 च ना साडे कोलों विछड़ गईयां सिर्फ 35 साल की उम्र च, और एक बेटा इन्हां ने छोड़िया अपने पिछे, और इन्हां दे भाई ज़ुहेब हसन ने फिर गाना छड़ दिता कि मेरी भैन नहीं है तो हुण मैं गाना नहीं गावांगा, और काफ़ी अरसा उन्होंने भाई ने गाना ज़ुहेब हसन ने नहीं गाया, लेकिन फिर कुछ अरसा आए, थोड़ी देर उन्होंने गाना गाया, लेकिन फिर वो उन्होंने गाना छोड़ दिता और अपने कारोबारी ज़िंदगी मशगूल हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान आते कह लो बहुत बड़ा फ़ख्र है कि पॉप मौसीकी दी एक बहुत वड्डी गुलकारा नाजिया हसन जिन्हों के तगमा हुस्ने कारकर्दगी तो भी नवाजा गया, और एक बहुत मुकाम उन्होंने हासिल किया। मज़े की गल तुहानूं इदां दे बारे च कह दसां कि इन्हां ने पंजाबी दा सिर्फ एक ही गीत गाया अपनी पूरी जिंदगी च, और ये बड़ी हैरानगी की गल है कि इन्हां जिहड़ा गाउण गाया वो भी इन्ना हिट होया कि असी लोग खुद परेशान हो जाने
कि यार अगर होर ज़्यादा गांदियां ते बड़ी बड़ी जिहड़ी गुलकारा सन अपने वक्त दियां उन्हां नूं ते थरथली पै जानी सी कि उन्हां दियां इन्हां ते उन्हां दी जड़ां ही बह जाना सी। लेकिन बस रब ने उन्हां दी उम्र ही इन्नी लिखी सी और उन्हां दी जिंदगी ही इन्नी सी कि वो अपना एक पूरे कह लो शबाब दे आलम विच और शोहरत दे अरूज दे उत्ते इस दुनिया तो चले गईयां। और उन्हां दा एक गाना जिहड़ा पंजाबी दा है वो अज तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं, टाली दे थल्ले। आओ सुनने। लो जी असी तरिंजन परत आए हैं और टाली दे थल्ले बह के आकरिए प्यार दियां गल्लां। नाजिया हसन दा इक पंजाबी गीत और वही इन्ना सोहना और इन्ना मिठा तुसीं वेख्या कि कमाल है कि मैनू इंज लगदा कि जिस शायर भी इन्हां नूं एक गीत लिख के दिता उन्हें बड़े चुन चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जेड़े कि इन्हां लई पंजाबी आसान हो जाए। और उहदा उन्हां फिर बेहतरीन गायकी च अपना गायकी दे नाल इस्तेमाल किया कि गीत अमर हो गया। और असी जद भी सुनने तो सिर नूं धुनने और इंजॉय करने कि टाली दे थल्ले बह के आ करिए प्यार दियां गल्लां। और प्रोग्राम तरिंजन चल रहा है तुहाडा अपना अमीन कुंजाई FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी तो तुहाडे नाल है। सवेरे 10 बजे दा आए है और रमज़ान भी है। देखो रमज़ान च कैलरीज भी तो बड़ियां लग जांदियां ने ना जी। सरगी वेले दा तुहानूं पता है फिर खादा पीता होवे ते उंज भी असी लोकी शोर बड़ा पाने रोज़ा रख लीए कि अज मेरा रोज़ा ही होए, अज मेरा रोज़ा ही। कोई गल भी होवे ना हर गल नाल असी ना टच मारने अरे अज रोज़ा ही मेरा ध्यान नाल रवी, अज रोज़े ही मैनूं प्यास लग गई अज रोज़े ही ठंड हैगी है ते वो रोज़ा कुछ भी नहीं कहता। रोज़ा की कहना है सिर्फ जेड़ा नाश्ता तुसी 8 बजे करदे हो आम रूटीन या 7 बजे वो तुसी कह लो 3:45 4 सवा 4 कर लैंदे हो। अजकल दे मौसम के हवाले नाल जेड़ा रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो अफतारी जिहड़ी है वो 6:30 के करीब अजकल तकरीबन आ गई है। तो फिर भी असी जनाब मरे होने तो इंज जिमें कि पता नहीं साढ़े उत्ते किन्ना भार टह गया, किन्ना साढ़े उत्ते वजन टह गया। हाँ रब ताला ने गुंजाइशां दित्तियां ने उन्हां लोकां नूं कि जेड़े मरीज़ ने जेड़े कि माजूर ने जेड़ा रोज़ा नहीं रख सकते तो उन्हां ते रब ने छूट दित्ती है और फिदिया रखा है कि वो एक बंदे नूं एक टाइम दा रोज़ खाना खुआ देन या एक पूरे महीने का अपने एक राशन का एक हिसाब बना के उन्होंने उन्ना राशन लै देन ताकि ओदी किसी की मदद भी हो जाए तो उस बंदे का जिहड़ा कि रोज़ा रखने तो माजूर है ओदा भी स्वाब जिहड़ा ना वो कायम रहे। तो ये देखो कितना अच्छा साडा निज़ाम है और ये कितनी खूबसूरती है कि बड़ा पुरमन बड़ा एक सलीके तरीके और डिसिप्लिन वाला हर चीज़ वाजे तौर पर बयान कर दी गई है। और जिमें असी अच्छा एक होर तुहाडे नाल गल याद आ गई करनी कि रमज़ान असी कुरान पाक बड़ा पढ़ने है एने जी। अज जिन्हों पुछो जी आज इस पारा लैके बैठे आ किनवें पारे में हाँ असल अज ना 14वां रोज़ा है ना तो मैं तो रोज़ के 2 पारे पढ़ रहा या पढ़ रही हाँ तो मैं तो एक कुरान इंशाअल्लाह मेरा कल पूरा हो जाना। तो इंज किसी होर नूं पुछो वो भी यही कर रहा होंदा तो मैं उन्होंने ये गुजारिश करना कि बहुत चंगी गल है इन्हां रमज़ान दे सानू पढ़ना चाहिए कुरान पाक। साडा ये साडे हत्थे एक मंशूर है ये साडी जिंदगियां दा सीधा रखने का एक पूरा कह लो कानून कुदरत रब दा अनायत किया होया और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उत्ते नाज़िल होया होया जिहड़ा सानू जिंदगी वरतने और जिंदगी नू
चलाने दा तरीका मरने दम तिकर और कब्र दी जमीन दे विच जाने तिकर साडे नाल ओदे अमाल जांदे ने ते ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन गुजारिश करांगा कि जिसले ये महीना गुजर जाता है तो फिर साढ़े जेडे कुरान पाक ते सपारे होंदे ने वो साडियां मावां भैणां या तो अक्सर अजकल फ्रिजां दे उत्ते रख दिंदियां ने लपेट के ओहदे च जुजदान च, ते या फिर अपना एक उच्चा जिहा एक बनाया हुंदा स्टैंड जिहा वो कलामे पाक उत्थे असीं रख दिंदे आं। ते अल्लाह मैनू माफ़ करे कि फिर काफ़ी अरसा असी हत्थ ही नहीं लाने और धूड़ पै जाती है उस कपड़े उत्ते। असी उस कपड़े नूं ही साफ करने के बारे च थोड़ा जिहा महसूस करें यार उच्चा है यार बाद विच कर लांगे, इत्थे किसी बच्चे नूं कवांगे ए साफ कर दे, तो इंज नहीं होना चाहिए। भावें रोज़ का एक रुकू पढ़ो, रोज़ पढ़िया करो, चूँकि ये साडे रोज़ की जिंदगी का ना तरीका सलीका और करीना सिखांदा सानू कलामे पाक। और यह लाइन जिसले मैं कह रहा तो मैनू माँ जी बानू कुत्सिया याद आ गए ने कि वो जिसले दुआ देंदे सन तो हर बंदे नूं यही कहंदे सन कि अल्लाह पाक सानू जिंदगी गुजारने का तरीका सलीका ते करीना अता फरमाए। और एक देखो कितनी सोहनी दुआ है, इस दुआ विच ना तीनों नफ्स अमारा, नफ्स लवामा ते नफ्स मुतमइन्ना आ जाते हैं। और ये अगर साढ़े लोगों नूं हासिल हो जाए, साढ़े अमलों में आ जाए और खाली जुबानी कलाम ना असी करिए, जिहड़ा कि अज दे दौर जुबानी कलामी असी बड़े वाज करने बड़े सोहने सोहने मैसेज पैगाम देने, मैं भी उन्हें च इसलिए शामिल हाँ, मैं भी यही प्या करना वा। लेकिन इस नीयत नाल करना चाहिए कि सच्ची नीयत होवे। और चूँकि इन्नामल आमाल बिन नियात है कि साढ़े अमलों का दारोमदार नीयत उत्ते वे, साड़ी नीयत अच्छी होएगी तो खैर ही खैर होएगी। और सारी खेड ही नीयतां दी है, नीयतां तो नाल मुरादां पूरियां होंदियां ने। और ये जिहड़ियां चीज़ां ने अगे काम आने वालियां ने, दुनिया विच अच्छा करांगे तो अगों ही खैर मिलेगी। और खैर नू खैर है, जी नू जी है। और जड़ा काम बुरा करेगा अल्लाह पाक हर बंदे नू बुराई तो बचाए। अल्लाह मैं नहीं चाहता कि कोई बुराई विच जावे या फसे कि उन्होंने गुनाह मिलन, कौन चाहता है, ना कोई बंदा चाहता है आप। और सिर्फ असी लोकी दुनिया दे चंद रोज़ा ऐश आराम या चमकीलापन वेख के ते असी आपे तो बाहर हो जन्ने, तो इंज नहीं होना चाहिए। क्यों कि जिंदगी एक बारी आनी है, मुड़ के नहीं आनी। कि असी कोई ड्रामा नहीं है कि बई इत्थे थोड़ा जिहा होया गलत तो इनू वापस कर लीए तो फिर ठीक करके तो अगे टुर जाई, नहीं। और ना ही ये कोई गाना है जिहड़ा कि असी बार बार ला के रेडियो ते या टेप ते या अपने मोबाइल ते सुन सकने, नहीं। ये इक्को बारी दरिया दे पानी दे आर इन्हें बहंदिया जाना है तो आखिर मौत दे समुंदर जाके गुम हो जाना है। बल्कि गुम नहीं होना, एक और नवी दुनिया जाके असी उत्थे ट्रांसफर हो जाना है, उत्थे तब्दीली हो जानी है। तो उत्थे दा फिर रब जाने तो वो इंसान जाने जिहड़ा इत्थे खैर करके गया उन्होंने खैर ही खैर है। और सत्ते खैरा ने तो जिन्हें कुछ किया है गुनाह, वैसे रब्बुल आलमीन ते माफ़ करने वाला है और रहमान है और रहीम है, और रहमान है और रहीम है। और देखो वो जिथे अल लग जाए, अल दा मतलब ये वे कि वो बेतहाशा तुहाडे अंदर सफाइयां करने आते तुहानू मौके देंदा है, तुहानू आसानियां देंदा है कि बंदिया हुण थोड़ा हत्थ हौला कर लै, वापस आ जा। उन्हें आखिर ये क्या होया कि आखिरी साह तो पहले तिकर अगर तुम बंदिया माफ़ी मंग लेगा, वापस आ जाएगा मेरे हाल, तो मैं तेनू जफ्फी पा के मिलांगा, अगे वध के मिलांगा। लेकिन अगर तू वक्त नजात है तेनू इस चीज़ का आया तो फिर वापसी तेरे लिए
मुश्किल हो जाएगी। तो अल्लाह पाक सानू उस वक्त तो बचाए और सानू खैर वंडने ते सरब देने की तौफीक अता फरमाए। असी दिते चो देना है, असा किहड़ा कोई अपने कोलों देना है। तो रब दे दिते दा विच थोड़ नहीं इजाफा ही हुंदा है, बरकतां ही पैंदियां ने। ते ये बरकतां शाला साडे घरां विच, साडे शहर महल्ले गलियां विच, मुल्क विच पैंदियां रहन और खैर हुंदी रवे। ते आओ एक गीत सुनने। बह जा मेरे कोल तैनू तकदा रवां, ए गुलाम अली होरां दा बहुत ही प्यारा ते बहुत ही पुराना गाना अज तुहानू नाल असी सांझ कीता है। और मैनू इन्हां दी वो टाइम याद आ गया जद इन्हां ने गायकी सिखने आते गंडा बंद ये शागिर्द होए पहले बड़े गुलाम अली खान साहब दे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब दे। और फिर होया कि उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब जेड़े वो अपना हिंदुस्तान हिजरत कर गए पाकिस्तान तो। वो पहले उत्थों आए सन, लेकिन फिर इत्थे दा जिसले मौसीकी दा माहौल देखा तो उन्हें कहा कि नहीं मैं वापस जावांगा। तो गुलाम अली खान साहब ने उन्हें अगे दरखास्त की कि मैं तुहाडा शागिर्द बनना चाहना वा। तो गुलाम अली खान साहब ने उन्होंने हामी भर ली और अपना शागिर्द बना लिया। फिर लेकिन उन्होंने जिसले जाना पिया तो फिर उन्होंने गुलाम अली खान साहब नू उस्ताद बरकत अली दे सपुर्द किया और क्या कि यह बच्चा बड़ा अच्छा गुनी है तो इनू तुसी सिखाओ। और फिर गुलाम अली खान साहब ने उस्ताद बरकत अली खान साहब को अपना बकाया मौसीकी जी क्लासिकल गायकी और राग रागनियाँ और गज़ल सैमी क्लासिकल और सारियाँ ठुमरी ख्याल वगैरह सीखे। और गुलाम अली खान साहब का कमाल है कि हर फनकार दा गायकी का तरीका अपना होंदा है। गुलाम अली खान साहब नोज़ल गायक ने, यानी कि नक ना तो जरिए इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है ना ये अपना गायकी करते हैं। इस तरह रजब अली सन साडे बड़े बड़े गायक फिल्मां दे भी और वैसे भी गैर फिल्मी, वो भी जिसले गाते सन तो नोज़ल सन। बहुत खूबसूरत आवाज़ गुलाम अली साहब जी। और अल्लाह पाक इन्होंने हयाती दे, इन्हें बहुत पाकिस्तान दी मौसीकी च बेहतरीन गायकी पेश की है और रब इन्हों सलामत रखे। तो इसलिए तुसी सुन रहे हो तरिंजन FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी तो। साढ़े टैलीफोन नंबर है ने, व्हाट्सएप नंबर है 051 92 91 521 तो लैंडलाइन नंबर है 051 92 91 520। तो अमीन गुंजाई ताडे नाल है सवेरे 10 बजे तो लैके हून तिकर और वेला खिसकता जा रहा है। तो नाल वो आवाज़ा भी मारदा जांदा हौली हौली कि चुपके के होशियार होंदे जाओ, टाइम मुक रहा है। तो प्रोग्राम नू तुसां अगे भी चलाना है तो फिर इनू मुकाने तिकर लैके जाना है 12 बजे तिकर। तो साढ़े कोल हुण आए ने कोई पैगाम मैं तुहाडे नाल शेयर कर लवां। जनाब अहमद भोला साहब रावलपिंडी तो बहुत शुक्रिया, तुहानू ये प्रोग्राम पसंद आंदा है। साढ़े ये भी मुस्तकिल अपने उन्हें सुनने वाले और बड़ी मेहरबानी अहमद भोला जी। और उस तो बाद शर्जील राजा साहब ने और इन्होंने प्रोग्राम साडा बड़ा पसंद आया है। तो नाल कहने ने पापा खालिद प्रोग्राम सुन रहे ने, बहुत शुक्रिया शर्जील राजा साहब ते पापा खालिद साहब। अल्लाह पाक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे ते तुहानू प्रोग्राम पसंद करने दा। उस तो बाद शहजाद साहब ने, शहजाद अमीन साहब ने, उन्हों का शुक्रिया। गजनफर मरल ते फयाज मरल ते शहजाद मरल ने, ये जनाब इन्होंने प्रोग्राम पसंद करते हैं। ये भी साढ़े रेगूलर लिसनर ने। और अज मैनू लगता है कोई 1-2 साढ़े रेगूलर लिसनर जड़े ने उन्हों की आवाज़ भी नहीं आई ना उन्होंने पैगाम आया। ख़ास तौर पर मिसिस सईद हो गए, उस तो बाद आफरीन मेरे ख्याल ही रोज़ा लगे आने या कि सुते ने। तो चलो कोई गल नहीं, हो जाता है, कदी कदी इंज भी हो जाता है। और
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, 365 ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮਸ ਵੀ ਆਏ ਕੈਸੇਟਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਨ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਹੀ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਯਾਤੀ ਦੇ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਗਾਇਕਾ ਨਈਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਸਨ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨੇ WhatsApp 05192915521 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 05192915520। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
अपना शौकत अली साहब तो लैके नाजिया हसन तो लैके और जिन्ने भी साढ़े वड्डे फनकार होए ने और कोई किसी की बरसी है किसी का जन्मदिन है यही देखो होंदा है और इसे तरह ही जिंदगी जिहड़ी है वो अगे टुरदी है और इसी जिंदगी दे विच अज तुहाडे नाल एक बहुत ही कह लो महान परसगीर दा मैं कहांगा कव्वाली दे एक मन्ना परमन्ना नाम और एक बड़ा वड्डा ख़ानदान और साबरी ख़ानदान जिन्हां विच जनाब गुलाम फरीद साबरी साहब 29 वरे हो गए ने अज साढ़े तो विछड़िया लेकिन उन्हां दी आवाज़ उन्हां दी कव्वाली और उन्हां दा एक खास जिहड़ा वो कहंदे हुंदे सन ना अल्लाह वो अज भी साढ़े कन्नां च गूंज रहा है। ते गुलाम फरीद साबरी जिहड़े सन ना ये 1930 विच ना हिंदुस्तान का एक मशरकी पंजाब दे इलाका है रोहतक उत्थे पैदा होए और इन्हां दा खानदान बुनियादी तौर पर ना गवैयां दा खानदान सी और इन्हां दे वालिद साहब भी गायकी नाल ही मुंसलिक सन। ते जिसले पाकिस्तान बनिया ते ये लोग फिर उत्थों अपना हिजरत करके ना ते कराची आ गए। कराची आके ना ते काफ़ी अरसा जड़ा कैंप सन महाजर कैंप उत्थे रहे और काफ़ी इन्हां ने मुश्किलात ते कह लो मुसीबतां वेखियां। ते फिर ये होया कि जनाब गुलाम फरीद साबरी साहब का एक इंटरव्यू सी तो मैं सुनिया सी तो उहदे च उन्हें कहा कि मैं जिसले पाकिस्तान इस कराची च अपना काम शुरू किया तो मेरे को ना गाने वास्ते ना ही मेरे को पेटी सी यानी कि हारमोनीयम तो ना ही कोई संगत आते तबला या कोई नाल सजिंदे सन गो के मेरे भाई सन जेड़े कि मेरे सन। लेकिन असां की कीता असां सब तो पहले कहंदे ने कि डंडे दोरियां दी ना दुकान पाई। असी उत्थे एक छोटी जी कराची दे एक बाजार से ना दुकान ले ली तो असी वो काम करन लग पे। आहिस्ता आहिस्ता वो काम साडा काफ़ी बेहतर हो गया सानू पैसे काफ़ी साढ़े कोल हो गए जमा तो फिर असी अपने खानदानी पेशावर गायकी जी साड़ी कवाली की सिनफ सी असी ध्यान उहदे वाल ध्यान देन लग पे। असी पेटी भी ले ली तबला भी ले लिया फिर भाई होर थोड़े वड्डे सियाने हो गए नाल खास तौर पर इन्हां दी संगत जिहड़ी हुंदी सी वो जनाब गुलाम फरीद साबरी ते मकबूल साबरी जिहड़े सन छोटे भाई इन्हां ने कट्ठियां अपना कवाली दे शुरू किया अपना फन और इन्हां ने मैं समझना वा कि बड़े सगीर उसले भी बड़े कवाल सन और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान वाले पासे जी कवाली की गायकी का तरीका सी ना वो थोड़ा जहा ना कह लो फिल्मी अंदाज की कवाली होंदी सी कि एक बंदा जड़ा सी वो कवाली गांदा सी उहदे नाल संगत इच कोई ताड़ी मारने वाला या नाल तान लाने वाला या पलटा देने लाने वाला मुर्कियां गाने वाला नाल नहीं सी हुंदा ते वो एक रूटीन दा एक कह लो गीत नुमा कवाली सी। जद के बड़े साढ़े इस पासे कवाली जड़ी सही मानिया जड़ी कि एक रूहानियत दा सबब बनता है रूह दे वाते और ख़ास तौर पर खानकावां दरगाहां उत्ते गाई जाती है सुनाई जाती है तो ओदा जड़ा बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया ना वो गुलाम फरीद साबरी ते मकबूल अहमद साबरी कवाल ते हम नवा असां पहली बारी इन्हां दे नां सुने
और इन्हों ने जिहड़ी अपनी कवाली शुरू की इश्के हबीब फिल्म सी पहली 1965 आई। उहदे विच इन्हां दी कवाली सी कि भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और ऐसी फिर इन्हां दी झोली भरी गई, ऐसी भरी गई कि यकीन मनो कि इन्हां भरावां दी जोड़ी ने पूरे बरे सगीर की जिथे जिथे उर्दू और कवाली सुनी जाती सी, इन्हां ने अपना सिक्का जमाया और इस तरह जमाया कि जिहड़ी कवाली गाई ओनू अमर कर दिता इन्हां। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, इन्नी कह लो वड्डी और मशहूर तरीन कवाली है जिहड़ी कि इन्हां दे रिकॉर्ड कायम कर छड़े। इन्हां ने फिल्मी कवालियां इन्हां बड़ियां गाइयां। और जिवें मैं तुहानूं दस्सिया इश्के हबीब इन्हां दी सी फिल्म एक, फिर चांद सूरज सी उहदे च इन्हां दी कवाली सी, अल्जाम सी, बिन बादल बरसात सी, सच्चाई सी फिल्म जिहदे च कि इन्हां कवाली गाइयां, अपनी आवाज़ दा जादू जगाया और इन्ने शानदार तरीके नाल कि मैं हैरान होना वां कि कवाली नूं इन्ना सोहना रंग और इन्ने अंग दिता इन्हां ने कि ये 65 तो बाद 70, 70 तो 80, 80 तो 90 की दहाई तक इन्हां ने कवाली दे उत्ते बेताज बादशाह समझ लो, जिस तरह गज़ल का बेताज बादशाह असी अपने जनाब खान साहब मेहदी हसन खान साहब नूं समझने आ, इस तरह ये दोनों भाई कवाली दे विच बेताज बादशाहत इन्हां कीती और बड़े गज वज के कीती। हालांकि उस वेले साडे अपने पाकिस्तान दे विच कवाली दी गायकी विच अजीज़ मियाँ कवाल और अजीज़ मियाँ तो पहले इन्हां दे नाल जनाब नुसरत फतेह अली दे वालिद उस्ताद उन्हां दा नाम फतेह अली सी, और उन्हां दे भाई गायक कवाली गा रहे सन, लेकिन वो सैमी क्लासिकल गा रहे सन और ओहदे वाल गायकी जिहड़ी सी उन्हां दी सुनने वालियां दी तादाद थोड़ी महदूद होंदी है। तुहानूं पता क्लासिकल अंग विच जिहड़े भी रंग पेश किया जाए ओहदा मिजाज रखने वाले महदूद लोग होंदे ने, लेकिन आम फैम मौसीकी नूं जिस तरह कवाली नूं इन्हां ने रंग दिता। और ये तुहानूं जिवें पता है कि कवाली जिहड़ी है ये इजाद है हज़रत अमीर खुसरो दी, और हज़रत अमीर खुसरो ने कवाली दे विच रूहानी अंदाज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दे दौर विच उन्हां दी मुहब्बत विच लिखिया। और तुहानूं ये भी दसदा जावां कि हज़रत अमीर खुसरो ने सतार भी ईजाद की। उन्हां ने ढोलकी की जगह तबला नूं अपना मुतारफ कराया कि ढोलकी नूं दो टुकड़ियां करके ते तबला बना दिता और दायां बायां और ओदा अपना नर ते मादा एक जोड़ी का दे दिता ना। और कवाली उत्थों चलती हुई जिसले गुलाम फरीद साबरी और तिकर आई और असा साड़ियाँ लोग जैसे लोगों ने नस्लों ने बचपन ही सुनिया उन्होंने, और फिर अजीज़ मियाँ कवाल दा एक अपना कवाली का अंदाज उन्होंने कवाली नूं रंग दिता अपनी इनफरादियत तरीके नाल। और एक कवाली का तसलसल फिर मंजूर हुसैन संतू खान कवाल साहब बड़े मशहूर कवाल सन, उन्होंने एक और रंग सी और वो अपने तरीके की कवाली पेश करते सन। लेकिन जिहड़ी कवाली ये दो भरावां ने गाई और जो कमाल दा कलाम मैं समझना, फिर चुन चुन के कलाम गाते सन। अदीब रायपुरी साहब का कलाम इन्ना बड़ा अच्छा कवाली पेश किया और कह लो दुआम हासिल हो गया उन्होंने कवालियां नूं जड़ियाँ जड़ियाँ कवालियां और जड़े जड़े कलाम इन्होंने गाए। और मैं अज तक भी तुसी जिसले कवाली सुनोगे तो इन्हां दा
अपना रंग अपना अंग और इन्हों ये भी कह लो शर्फ हासिल है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन के दरबार से भी जाके इन्हें कवालियाँ पेश कीतियाँ और दादा साहब का दरबार हो गया, इमाम बरी सरकार हो गए, बड़े बड़े जिन्हें भी दरबार सन ये भाई उत्थे कवालियाँ पेश करते सन। फिर पाकिस्तान टेलीविजन ने और रेडियो पाकिस्तान ने इन्हों बहुत ज़्यादा कह लो इज्जत दी। जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि इन्होंने कवाली शुरू की सी फिल्मी कवालियाँ तो, और फिर वो कवालियाँ एक रवायत बन गई। हर फिल्म में कोई ना कोई किधरे ना किधरे कवाली जरूर पाकिस्तानी फिल्म का हिस्सा होंदी सी। ते उस तो बाद जिसले ये 5 अप्रैल 1994 ਨੂੰ कराची जनाब गुलाम फरीद साबरी साहब ਨੂੰ दिल का दौरा पिया तो वो बड़ा खतरनाक सी ते ये इन्हां दी जान ना बच सकी। ते फिर इन्हां दे भाई मकबूल अहमद साबरी कवाल जड़े सन वो कल्ले रह गए, और इसलिए वो कल्ले रह गए ते महफलों गज़लां गान लग पे और सैमी क्लासिकल गायकी गान लग पे। कवाली वाल उन्हां दा रुझान घट गया क्योंकि इन्हां दी जोड़ी टुट गई। तो दस्या ना कि गुलाम फरीद साबरी की जड़ी आवाज़ सी ना उनकी पिच बड़ी हाई सी और उन्हां दा मीटर आवाज़ दा बड़ा उच्चा सी। ते जड़े मकबूल सन साबरी साहब उन्हां दी आवाज़ दा धीमापन सी, होली लहजे चो कवाली इन्हां दे नाल संगत करते सन। तो बड़ा सोहना ना एक कंबीनेशन, एक बड़ा सोहना जोड़ बने सी दोवां वीरां दा ना कवाली दे विच, और सांझ सी इन्हां दी। और उस सांझ ने तकरीबन 2-3 दहाइयां पूरा राज किया और इन्हां ने एक इन्ना वड्डा एक कह लो म्यूजिक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और गायकी के हवाले नाल कवाली दे विच अपना एक मुकाम हासिल किया। और उस तो बाद कवाली दा जिहड़ा रंग सी अजीज़ मियाँ जिस तरह दस्या वो लैके अगे टुरे। फिर इन्हां दे बेटे आ गए अमजद साबरी, उन्होंने बड़ा सोहने तरीके नाल अपने बाप की बिल्कुल रवायात नूं बरकरार रखदे होया कवाली लैके अगे वधे और बड़ा सोहना उन्हें भी रंग रचाया। लेकिन कवाली दे विच तुहानूं एक थोड़ी जी और इन्फॉर्मेशन दे देवां कि जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब दा भी बहुत वड्डा हथ है। उन्हां भी कवाली दी सिनफ नूं जिस तरह जिंदा रखा और इन्हें शोर शराबे पॉप म्यूजिक और ढोल टमके दूजे म्यूजिक मगरिब दे तो खौफजदा नहीं होए, बल्कि उन्होंने अपने गाणियां नूं वैसटर्न अपनी कवाली नूं वैसटर्न म्यूजिक दे विच तब्दील करके ते एक नवां कह लो अंग्रेजी कहने ना फ्यूजन वो बना दिता। और पंजाबी दे नाल उन्होंने फिर कवाली और वैसटर्न दे जड़े सन तबले ड्रम गिटार ते वायलन ते उन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल किया ते अपने रागां नूं उन्हां दे विच ढाल के ते कवाली दा एक नवां अंग दे दिता। लेकिन कवाली दा जड़ा मज़ा ते जड़ा समा गुलाम फरीद साबरी कवाल ते मकबूल अहमद साबरी कवाल और हमनवा जड़ा पेश करते सन या जड़ा बनते सन वो दौर फिर नहीं वापस आ सकता और शायद कदी भी ना आवे। गो के आजकल भी कुछ कवाली गाने वाले नवे बच्चे आ रहे ने, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय एक मौसीकी दे बहुत छोटे तालब इलम की हैसियत के मुताबिक मैं नहीं समझता
कि इन्हां तो अगे ते वड्डा ते उचेरा कोई मन्निया परवन्निया नामवर कवाल फैमिली गुलाम फरीद साबरी कवाल होरां दे विचों तो इलावा कोई अगे आ सकेगा। इन्हां दा नां हमेशा सब तो उत्ते ते उचेरा सूरज वर्गा कवाली दी सिनफ विच पाकिस्तान दी मौसीकी च कायम दायम रहेगा। आओ एक पंजाबी कलाम तुहानू सुनाने आ जनाब नुसरत फतेह अली दी आवाज़ विच। मन लग गया बेपरवाह दे नाल, किड्डा सोहना कलाम और किन्ना सोहना गाया जनाब नुसरत फतेह अली ने और शाह हुसैन दा कलाम सी। और बेपरवाह दे नाल मन ते लग गया पर टाइम जड़ा है ना वो सानू कह रहा है परवाह करो ते ध्यान करो। हुण जनाब छुट्टी दा वेला आ रहा है ते छुट्टी दे वेले दे बिल्कुल आखिरी टाइम ना अज बीबी आफरीन ने सानू मैसेज कर लिया कि बहुत शुक्रिया आफरीन कि वेख लो तुसी सानू याद नहीं करदे हो, असी भी तुहानू याद करने आ क्योंकि दिलां नाल राह हुंदा है। ते अज तुसी साडा इम्तिहान लिया ते इहदा मतलब है कि असीं इम्तिहान च पास हो गए हैं। ते ये बड़ी चंगी गल है कि तुहानू तरिंजन विच याद रहिंदा बुधवार हर बुधवार। और ये बुधवार भी आया है वो पैंडा तकरीबन हुण वेला कूका मार रहा है कि चल भाई तैयारी कर ते अपना समान बस्ता बंद कर ते अगले राह पो। FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी तो अमीन कुंजाई तरिंजन तो अगले बुधवार तिकर इजाजत चाहता है। रब राखा।